हेलो वेलकम टू ऑल ऑन आधार एकेडमी। सो अभी तक हमने गायरोस्कोपिक कपल में इफ़ेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन बियरिंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन्स, स्टेबिलिटी ऑफ नेवल शिप्स already we have discussed and we have gone through few problems based on these topics. So अगर अब तक अभी आपने उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके यू कैन सी दोज वीडियोज़. Today we are going to see how this gyroscopic couple affects when a four-wheeler it moves on a circular path. So here it is a schematic diagram. It is the top view of the car, or you can say this is a four-wheeler which is making a left turn, and when this car will move on this curved path, so there may be rotating parts in the engines, and there is rotation of the wheels. So because of the rotation of the wheels and the rotating parts present in the engines, there will be gyroscopic couple. So we have to analyze one by one how this effect gyroscopic couple, what will be its effect on the stability of the car or four wheelers. So before we proceed, suppose if this is the left turn of the vehicle, so these two wheels will be named as a inner wheel of the four wheeler, and these two B and D, they are the outer wheels of the vehicles. This X, it is the width of the track. Width of the track, it is represented by X. There are few more nomenclature that we will use. So here let the capital W, it is the weight of the car. It is weight of the vehicle or vehicle in Newton. And suppose this center of gravity of this car, its height from the ground surface is h. So h क्या है? It is the height of center of gravity. It is the height of center of gravity from रोड सरफेस से, क्योंकि इसका वेट तो होगा, इसका जो वेट होगा, और वेट कहाँ पे होगा, वो कुछ हाइट पे होगा, ग्राउंड से थोड़ी सी हाइट पे होगा, क्योंकि वो उसका जो मास जहाँ पे पूरा वेट कंसंट्रेटेड है सरफेस से, वो कितनी हाइट पे है, दैट हाइट इज h. And for moment of inertia, let we use I capital W and I capital E. These are the moment of inertia of one wheel and rotating parts of the engine and rotating parts ऑफ इंजन. सो इंजन में जो रोटेटिंग पार्ट्स है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ई, और एक व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डब्ल्यू. एंगुलर स्पीड के लिए सिमिलरली वी कैन यूज दिस इज द ओमेगा ई एंड ओमेगा डब्ल्यू. ई फॉर इंजन एंड डब्ल्यू फॉर व्हील. दीज आर द एंगुलर वेलोसिटी for engine and wheel. And suppose the speed of the car, it is capital V. So capital V, it is the velocity of vehicle. It is moving with some velocity. It will be in meter per second. This will be your in radian per second angular velocity, and this will be your kg meter square units.
and suppose the curvature of this path, it is capital R. So capital R, it is the radius of the curvature, radius of path, and it will be in meter. So these are the few symbols that we will use in our problem, in our when we try to calculate this gyroscopic couple and other reaction. हमको क्या find करना है? We want to find out what will be the net reaction force on each wheel of the vehicle, और inner wheel पे कितना रिएक्शन आएगा एंड आउटर व्हील पे कितना रिएक्शन आएगा, वो हमको फाइंड करना है. सो उसके लिए दीज आर दी सिम्बल्स जो हम अपने कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट लेट अस फाइंड रिएक्शन किसकी किसकी वजह से आ सकता है. सो पहले उसको फाइंड करते हैं. तो सपोज हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है. सपोज अभी कार स्टेशनरी है, रुकी हुई है. सो अगर कार रुका है, vehicle is in a static condition, so whatever the weight of the vehicle, it will be, we are assuming that it is equally distributed on 4 wheels. So पहला जो रिएक्शन होगा, फर्स्ट रिएक्शन, so that will be first part में we will find the road reaction because of the road reaction on each wheel due to weight की वजह से कितना रिएक्शन आएगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले. सो वेट उसका कितना है. वेट हमने एज्यूम किया है W. देयर आर 4 टायर्स एंड चारों पे इक्वली डिवाइड होगा. सो इट विल बी W एंड ऑन ईच व्हील डिवाइडेड बाई 4. or weight we can replace by mass and gravity divided by 4. So this will be your first equation, first reaction, and it is because of the weight. vehicle का जो भी weight है उसकी वजह से W/4 on each wheel, और किस डायरेक्शन में लगेगा उसको भी देख लेते हैं. what will be direction. so here the weight will act downside, so on each wheel there will be vertical reaction in the upward direction. सो इस व्हील पे भी अपवर्ड, इस व्हील पे भी अपवर्ड, सी पे भी अपवर्ड लग गया एंड डी ए पे भी अपवर्ड लग गया. सो अगर ये आपका व्हीकल है, इसके जो 4 व्हील्स है, इसका वेट नीचे की साइड लगेगा तो रिएक्शन किधर लगेगा. रिएक्शन विल बी अपवर्ड साइड. सो दिस इज द रिएक्शन एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू. इट्स वैल्यू इज W/4, W divided by 4. So it is because of the weight. Second way, let us find by the gyroscopic couple. So effect of gyroscopic couple. So कितने रोटेटिंग पार्ट्स है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 व्हील्स हैं जो रोटेट करेंगे, एज वेल एज देयर इज अ रोटेटिंग पार्ट्स प्रेजेंट इन इंजन. जो इंजन है, इंजन में भी रोटेटिंग पार्ट्स हैं. सो इंजन का खुद की वजह से गायरोस्कोपिक कपल होगा और इस 4 व्हील्स की वजह से भी गायरोस्कोपिक कपल होगा. सो पहले हम फाइंड करते हैं बिकॉज ऑफ 4 व्हील्स व्हाट इज द गायरोस्कोपिक कपल. सो गायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू 4 व्हील्स. 4 व्हील्स हैं, सो उसकी वजह से कितना गायरोस्कोपिक कपल जनरेट होगा. वी कॉल दिस इज CW, C गायरोस्कोपिकल कपल एंड W फॉर व्हील. सो वही I इंटू, सो I किसका लेंगे हम, I व्हील का लेंगे. सो I व्हील. ओमेगा किसका लेंगे, वो भी व्हील का लेंगे. सो I ओमेगा एंड ओमेगा P इट विल बी सेम, चाहे टायर हो या फिर इंजन हो, ऑल केसेस इट विल बी ओमेगा P. सो I ओमेगा एंड ओमेगा P, बट ओमेगा बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर व्हील्स, सो वी विल टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील. ये भी व्हील का होगा एंड दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन. ये किसके, कितनी वैल्यू किसका लिखा है. इट इज़ फॉर अ सिंगल व्हील. ऐसे कितने व्हील हैं. सो देर आर 4 व्हील्स, सो यू मल्टीप्लाई बाई 4. So this is the gyroscopic couple because of the 4 wheels. Let this equation A.
Let's find because of the engine. So gyroscopic couple because of the engine, तो यहाँ पे you can say this is the gyroscopic couple due to engine, due to rotating parts in the engine. So उसको हम we are representing by CE. तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे, इंजन का लेंगे, IE. ओमेगा किसका लेंगे, इंजन का लेंगे, ओमेगा ई. एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन, दिस इज ओमेगा पी. सो दिस इज योर इक्वेशन बी. इंजन तो एक ही है, सो इट इज इंजन एंड रोटेटिंग पार्ट, सो इट्स सिंगल. सो IE, ओमेगा ई एंड ओमेगा पी. सो दिस इज द gyroscopic couple because of 4 wheels and this is because of the engines. And suppose net gyroscopic couple क्या होगा, it will be addition of these two A and B, but these are the vector quantity. A and the gyroscopic couple, it is a vector quantity, so you have to take its sense कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, then it will be added A plus B. If they are in opposite sense, so it will be A minus B or B minus A, something like that. So let us here we assume that the net gyroscopic couple, if पहले लिख लेते हैं, suppose the net gyroscopic couple, net gyroscopic couple, so let this is C and it is equal to C of W and plus and minus C of the E. प्लस क्यों लिखेंगे, प्लस इसलिए लिख रहे हैं, प्लस कब यूज़ करेंगे, माइनस कब यूज़ करेंगे. लेट दिस इक्वेशन नंबर, इसको हम मेन इक्वेशन में ले लेते. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. पॉजिटिव साइन वी विल यूज, पॉजिटिव विल यूज व्हेन व्हील एंड इंजन, wheel and rotating parts in the engine rotates in the same direction, in the same direction. So अगर व्हील का रोटेशन और इंजन का रोटेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है कहीं से भी, बट सेंस दोनों सेम डायरेक्शन में इफ दे आर रोटेटिंग, सो वी विल टेक पॉजिटिव साइन एंड द नेट गायरोस्कोपिक कपल विल बी CW प्लस CE. नेगेटिव साइन कब लेंगे, व्हेन व्हील एंड इंजन आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, सो वी विल टेक नेगेटिव साइन. पॉजिटिव, सो दिस इज दी नेट गायरोस्कोपिक कपल. यहाँ पे अभी CW कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इक्वेशन ए से. C कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन 2 से. यहाँ पे अगर आपको कुछ और टर्म जैसे गियर रेशियो, यू कैन सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज. अगर इसको वैल्यूज प्लेस कर ले तो C विल बी, व्हाट विल बी C, सो इट विल बी योर 4 टाइम्स ऑफ IW ओमेगा W omega p, this is the precision velocity, plus and minus IE omega E and omega p. इसमें से कॉमन वी कैन टेक ओमेगा p at outside, so omega p, it is 4 times of I of the wheel, omega of the wheel, plus and minus I of the इंजन एंड ओमेगा ऑफ द इंजन. एंड सपोज अगर आपको गियर रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ यू गियर रेशियो इज गिवन, सो गियर रेशियो एक टर्म वी विल लुक इनटू द प्रॉब्लम. सो दैट इज डिफाइंड एज द एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्राइवर. तो ड्राइवर यहाँ पे कौन है, इंजन. सो ओमेगा ई डिवाइडेड बाई ड्रिवन. सो ड्रिवन कौन है, व्हील. सो ओमेगा ई, it is the angular velocity of driver or angular velocity of engine divided by angular velocity of wheel. So we can place this value omega e यहाँ पे हम place कर सकते हैं. So what will हमारे पास क्या आएगा, so we have a, so we can get C equal to omega p, this is 4 times of IW omega W and plus and minus IE, this is the again IE moment of inertia. ओमेगा E की जगह पे we can place G times of omega wheel.
g times of omega wheel. So यहाँ से this is omega wheel, this is omega wheel, we can pick outside, so this will be c omega p omega wheel, and this is 4 times of iw plus and minus g times of ie. So this will be your, let this is equation number 3. So this is your net gyroscopic couple. Let us look, अभी इसका डायरेक्शन क्या होगा. सो फॉर दैट, फॉर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ द स्पिन वेक्टर. सो पहले स्पिन वेक्टर ड्रॉ करते हैं कि कैसे आएगा. सो अगर ये लेफ्ट में जा रहा है तो ये ऑब्वियसली ये आगे जा रहा है, तो ये इस तरह से सेंस होगा. तो इसका स्पिन वेक्टर किधर आएगा, लेट दिस पॉइंट इज ओ. कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रही है तो व्हील ये इस तरह से रोटेट होंगी. सो दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ द स्पिन वेक्टर. सो दिस इज योर स्पिन एक्सिस. इट इज ऑन एक्स डैश, नेगेटिव साइड में एक्स डैश. प्रिसीजन कहाँ पे होगा, ये किस साइड में जा रहा है, लेफ्ट टर्न. सो लेफ्ट टर्न, कर्ल योर फिंगर इन द लेफ्ट डायरेक्शन. सो प्रिसीजन विल बी ऑन वाई एक्सिस. तो ये वाई एक्सिस पे क्या आ गया, वाई एक्सिस पे प्रिसीजन आ गया. दैट मीन्स जेड एक्सिस पे मेरा क्या होगा, जेड एक्सिस पे मेरा गायरोस्कोपिक कपल होगा. सो ऑन दिस एक्सिस वी हैव अ गायरोस्कोपिक कपल. कैसे फाइंड करेंगे, अगेन ये मेरा स्पिन वेक्टर रहा, इसको लेफ्ट का मतलब ऊपर से कैसे दिखेगा, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज. इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 90 डिग्री, किधर पहुंच गए, पॉजिटिव जेड की साइड में. इसका रिवर्स कर दिया, किधर पहुंच गए, नेगेटिव जेड की साइड में. दैट मीन्स दिस विल बी नेगेटिव जेड, जेड डैश. दिस विल बी योर रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल अंदर की साइड में. तो सेंस कैसा रहा, अगर ये कार है, ये कार है, सपोज ऐसे ये कार ले लेते हैं. स्पिन वेक्टर किधर आए, इधर आएगा. ये कार आगे जा रही है तो स्पिन वेक्टर ये इस तरह से रोटेट होगा, तो ये स्पिन वेक्टर होगा. इसको घुमाया, इधर गए, फिर इसका अपोजिट बनाया तो इधर आए. अभी इसका सेंस कैसे रहा, सेंस ये रहा, ये रहा, ये अंगूठा इधर किया तो इस वाले पोर्शन को वो प्रेस करेगा नीचे की साइड, और इस वाले पोर्शन को वो ऊपर लेगा. ये सेंस रहा. बट हमको क्या फाइंड करना है, रिएक्शन बिकॉज ऑफ द रोड. जैसे वेट नीचे लगा तो रोड ने रिएक्शन किधर लगाया, ऊपर की साइड लगाया. तो गायरोस्कोपिक कपल इस साइड में प्रोड्यूस हुआ, तो इसका रिएक्शन किधर लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा. सो अगर मैं इसके ये वाला व्यू ड्रॉ करूँ, पीछे से इसका व्यू ड्रॉ करूँ, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. सपोज ये मेरे पीछे के व्हील हो गए, दिस इज़ योर एक्सल, और ये पीछे का व्हील हो गया. यहाँ पे कितने व्हील हैं, 2 व्हील हैं, एक आगे एक पीछे. ये इस तरह से है, यहाँ से देख रहे हैं और इसको ड्रॉ किया. सो अभी गायरोस्कोपिक कपल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है. हमने ये डायरेक्शन फाइंड की, ये स्पिन, इसको रोटेट किया, ये डायरेक्शन हो गया, तो ये इस तरह से लगा. तो डायरेक्शन कैसी है गायरोस्कोपिक कपल की, ऐसी है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. ये स्पिन वेक्टर रहा, इसको घुमाया, ये उसका एंटी क्लॉकवाइज ये रहा, और फिर ये सेंस रहा. तो ये डायरेक्शन उसका क्या रहा, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का रहा, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल. बट हमें क्या फाइंड करना है, रिएक्शन बिकॉज ऑफ द रोड. तो रिएक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो दिस विल बी योर, दिस डायरेक्शन विल बी योर रिएक्शन. तो अगर ये इस साइड से हो गया रिएक्शन, ये इस साइड से हो गया, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा और इस वाले पोर्शन पे नीचे रिएक्शन लगेगा. तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की साइड लगेगा, और इनर व्हील पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो हमने C निकाल लिया. सो लेट अस फाइंड कि यहाँ पे कितना फोर्स है और यहाँ पे कितना फोर्स है. तो वी आर एज्यूमिंग, फिर से हम और ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस विथ इज योर x. सो C, so let's on inner wheel and outer wheel equal force we are assuming. Suppose P is the force acting on 2 inner wheels and 2 outer wheels, because couple है तो forces कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पे भी P force है, यहाँ पे भी P force है, and the distance between them is x. So I can write this C
C can be written as, or we are assuming, let's P क्या है? So this is the reaction on two inner or outer wheels. So दो inner पे है and two wheels are at outer. So force is P and P. So I can write P into X, it is equal to C. So I can write P into X, that is equal to C. कपल कितना जनरेट हुआ है? C. फोर्सेस कितने लग रहे हैं? एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x. So उसकी वजह से जो कपल है इट इज P into X. In equilibrium these two will be equal. So I can write P that will be your C over X. So this will be your force on two inner wheels. So दो अंदर है, दो बाहर है, तो हर एक व्हील पे कितना होगा? So यहाँ पे रिएक्शन on each wheels, because two wheels are at inner side and two wheels are on outer side. So on each wheel again this will be equally divided. So this will be your P by 2. अंदर पे लगा P और कितने व्हील पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? दो व्हील पे. So P divided by 2. So because of gyroscopic couple हर एक व्हील पे कितना फोर्स आया? Now it is P by 2 and that is equal to C over twice of the X. This is the value of P by 2. P by 2 it is the reaction, its value is C. C कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 3. फर्स्ट वी कैलकुलेट 3, इक्वेशन 3 से कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाई 2x, दैट विल गिव यू द रिएक्शन. अभी यहाँ पे प्लॉट करें तो कैसे दिखेगा? यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैसे दिखेगा? इसकी वजह से व्हील, आउटर व्हील पे किधर रिएक्शन आया? ऊपर की साइड आया, तो ये ऊपर की साइड आया. यहाँ पे इट इज अपवर्ड साइड, अपवर्ड साइड. यहाँ पे डाउनवर्ड, इनर व्हील पे डाउन साइड, यहाँ पे डाउन साइड. कितना लगा? इट इज P by 2, P over 2, P over 2 on each wheel and P over 2. ओके, ऑन ईच व्हील इट इज P over 2, P over 2. वेट की वजह से कितना फोर्स लगा है? इट इज W over 4. ये W over 4, दिस इज योर W over 4 एंड W over 4. सो वेट की वजह से W over 4 अपवर्ड साइड, एंड बिकॉज ऑफ गायरोस्कोपिक कपल आउटर व्हील पे ऊपर की साइड फोर्स लगा है P over 2, P over 2, एंड इनर व्हील पे डाउन साइड फोर्स लगा है P over 2, P over 2. सो ये तो रिएक्शन रहा किसकी वजह से? दिस इज द रिएक्शन बिकॉज ऑफ द गायरोस्कोपिक कपल. तो पहले C कैलकुलेट करेंगे, एंड इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच व्हील. सो टू इनर व्हील्स, reaction is P, two outer wheel, reaction is P into X, that will be your C. यहाँ से P find करेंगे, and because it is distributed on two wheels, so on each wheel we have a C over 2X. So that will be your reaction on each wheel because of the gyroscopic couple. So, अभी और कोई फोर्स लग सकता है? अभी और कोई फोर्स लग सकता है? तो यस, कौन सा फोर्स लगेगा? जब ये व्हीकल टर्न लेगा, बिकॉज उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट इज h हाइट फ्रॉम द सरफेस, सो देयर विल बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? आउटर साइड में लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ कपल. सो इन द थर्ड केस, बिकॉज ऑफ थर्ड, सो लेट अस फाइंड द इफेक्ट ऑफ, नए पेज पे ले लेते हैं. सो लेट्स डू in the third case. So it is the effect of gyroscopic couple. Effect of gyroscopic couple. So for gyroscopic couple पहले तो फोर्स फाइंड कर लेते हैं. कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स आउटर साइड में लगेगा FC, और वो कितना होगा? दैट विल बी mv square by r. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज योर mv square by r. इस फोर्स का सरफेस से हाइट कितना है? h. सो बिकॉज ऑफ दैट
ओवर टर्निंग वो किधर करेगा, वो व्हीकल को टर्न करेगा। सो ओवर टर्निंग मोमेंट कितना होगा, ओवर टर्निंग मोमेंट that will be C naught over turning, and that will be FC multiply H. Height कितना है h, so this is force multiply distance, so that will be your over turning couple. So this will come out mv square h by r. Again ड्रॉ करते हैं, ये उसका साइड व्यू ड्रॉ किया हमने, ये इसका इफेक्ट किधर रहेगा, सो इट विल टर्न दी व्हीकल, ये कार रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगा, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा तो इट विल टर्न इन, इस साइड में उसको टर्न करेगा। सो इसका इफेक्ट कैसा रहा, ये रहा, दिस इज द टेंडेंसी, ये इस साइड में लगा, तो इसका रिएक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट होगा, सो रिएक्शन फोर्स विल बी अपोजिट टू दैट, सो दिस इज योर रिएक्शन, सो अगर ये रिएक्शन है तो इसको कैलकुलेट कर लेते कितना, अगेन द डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस कितना रहा, x. सो लेट अगेन q, वी आर एज्यूमिंग q इट इज द रिएक्शन ऑन ईच इनर और आउटर व्हील। हर एक इनर एंड आउटर व्हील पे जो रिएक्शन है वो तो कितना होगा, वो अभी बाद में निकले, बट इनर के जो दो व्हील हैं, दो व्हील मिला के जो रिएक्शन है वो Q है। आउटर के जो दो व्हील है उस पे भी रिएक्शन कितना लग रहा है, Q लग रहा है। सो दिस Q इंटू एक्स दैट कैन बी इक्वेटेड टू दी CO. सो आई कैन राइट CO इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर h बाई r. दिस कैन बी रिटन एज Q इंटू एक्स. So from here I can write Q, it is equal to mv square h rx. So this is the force and it is distributed on two inner wheels. दोनों inner wheel पे मिला के Q आ रहा है. So हर एक inner wheel पे कितना आएगा? So I can write reaction on each wheel. सो दो इनर पे Q आ रहा है तो एक व्हील पे कितना आएगा, Q ओवर 2. सो Q ओवर 2 कितना होगा, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, डिवाइडेड बाई 2rx. सो दिस विल बी योर Q ओवर 2. सो कितना इक्वेशन आया, लेट दिस इक्वेशन नंबर 4, ये 4 हो गया. सो ओवर टर्निंग की वजह से दिस इज द रिएक्शन Q ओवर 2 ऑन ईच व्हील्स. डायरेक्शन क्या होगी, तो ये इसका सेंस रहा, ये इसका सेंस रहा. अगर ऐसे देखो तो ये किस साइड में रहा, ये इस साइड में सेंस रहा, इस साइड का सेंस रहा. तो यहाँ पे जो दो व्हील है, यहाँ पे फोर्स किधर लगा, ऊपर की साइड लगा. यहाँ के जो दो व्हील है उस पे फोर्स कैसे लगा, नीचे की साइड लगा. सो आउटर व्हील पे जो रिएक्शन होगा, अगेन रिएक्शन ऑन आउटर व्हील, सो इट इज़ Q ओवर 2, Q बाई 2. सो यहाँ पे जो रिएक्शन आया वर्टिकली अपवर्ड Q ओवर 2, वर्टिकली अपवर्ड Q ओवर 2. यहाँ पे डाउनवर्ड आया Q ओवर 2, यहाँ पे डाउनवर्ड आया Q ओवर 2. सो 3 डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ईच व्हील, वेट, गायरोस्कोपिक कपल एंड ओवरटर्निंग की वजह से जो रिएक्शन आया. सो आई कैन राइट, यहाँ से आई कैन राइट व्हाट विल बी दी नेट फोर्स ऑन, सो आई कैन राइट नेट फोर्स ऑन ईच इनर व्हील्स. तो अंदर के व्हील पे कितना रिएक्शन आ रहा है, सो इट इज़ W ओवर 4 अपवर्ड साइड में माइनस P ओवर 2 डाउन साइड माइनस Q ओवर 2 डाउन साइड. यहाँ पे भी देख लो W/4 अपवर्ड साइड में, बाकी के दो फोर्सेस किधर है, डाउनवर्ड साइड में है. सो P ओवर 2 माइनस Q/2. सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन ईच इनर व्हील्स.
सिमिलरली वी कैन राइट फॉर आउटर व्हील. सो आउटर व्हील पे कितना आ गया, W/2, P/2 एंड Q/2. सो नेट reaction on each outer wheel. सो कितना होगा, W/4 अपवर्ड साइड प्लस P/2 अपवर्ड साइड प्लस Q/2 upward side. So the net force will be W/2 plus Q/2 and P/2. So you can see this is the force, net force on each inner wheel. अंदर के हर एक व्हील के ऊपर इतना फोर्स लगेगा. And this is the force on each outer wheel. So in that way we find the reaction on each wheel. यहाँ से we can see ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही है, इट विल कम आउट ऑलवेज पॉजिटिव, एडिशन एडिशन एडिशन. बट यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आने के चांसेस हैं बिकॉज W/4 में से वी आर सब्सट्रैक्टिंग एंड वी आर सब्सट्रैक्टिंग. सो व्हेन द व्हीकल विल टेक लेफ्ट, अगर ये व्हीकल टर्न लेगा, ये टर्न लेगा, सो चांसेस हैं कि इनर व्हील पे रिएक्शन निगेटिव हो जाए. निगेटिव होने का मतलब रिवर्स हो जाए. तो यहाँ पे दिस पॉजिटिव होने का मतलब देयर विल बी ऑलवेज कॉन्टैक्ट बिटवीन टायर एंड रोड एंड टायर के बीच में हमेशा कॉन्टैक्ट रहेगा. बट इफ इट इज़ नेगेटिव दैट मीन्स इट विल लूज द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द रोड सरफेस. सो हियर प्रोबेबिलिटी है कि ये वैल्यू व्हेन इट बिकम्स नेगेटिव, सो देयर विल बी चांसेस दैट इट विल लीव द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द रोड सरफेस. सो this value should be for stability. What should be for stability? For stability, it is always desirable that the value of W/4 minus P/2 minus Q/2, that should be always greater or equal to 0. So this is the condition for stability. The net reaction force on the inner wheel, it should be or 0 or it should be always positive. Negative होगा तो it will be always turn out हो जाएगा. So this is the condition for stability. यहाँ से we can find what can be the limiting velocity of the vehicle. Limiting velocity of vehicle. Vehicle कितने velocity से वो turn पे जाना चाहिए कि so वो यहाँ से we can find out. So in that way we find the reaction on each wheel. So first क्या है, so एक बार फिर से summarize करते हैं. This is your schematic diagram. पहला रिएक्शन फाइंड करेंगे बिकॉज ऑफ द वेट एंड वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच व्हील. सो अगर हर एक व्हील पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो W/2 W/4 हर एक व्हील पे डिवाइड हो जाएगा. देन गायरोस्कोपिक कपल बिकॉज ऑफ द 4 व्हील्स, ये लिखा. बिकॉज ऑफ द इंजन, ये लिखा. देन इफ इंजन एंड व्हील्स आर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन वी यूज पॉजिटिव साइन, एंड इफ यू आर अपोजिट साइन for negative opposite direction, substitute here value, we get the value of C. Now for direction this is the side view draw किया, ये सेंस हमने फाइंड किया, ये मेरा स्पिन वेक्टर रहा, इसको घुमाया, ये मेरा रिएक्टिव हो गया, ये सेंस रहा. बट रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस इज द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. सो वर्टिकली अपवर्ड ऑन आउटर व्हील, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन इनर व्हील. आउटर पे 2 व्हील है, सो वी डिवाइड बाई P/2 टू गेट द रिएक्शन ऑन ईच व्हील. देन फॉर ओवर टर्निंग के लिए क्या किया, पहले हमने गायरोस्कोपिक कपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट द कपल. दिस इज द ओवर टर्निंग कपल जो उसको बाहर की साइड ढकेल रहा है. रिएक्शन, ये ओवर टर्निंग कपल किसकी वजह से, दिस कपल विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द रिएक्शन ऑन द व्हील. ये इधर जाएगा तो रिएक्शन इधर लगाएगा, तो रिएक्शन की वजह से जो आउटर एंड व्हील पे जो रिएक्शन है वो उसको Q एज्यूम किया, 2 आउटर व्हील एंड 2 इनर व्हील. सो ईच व्हील पे Q/2, Q कैलकुलेट कर लिया, Q/2 एंड अगेन फॉर द डायरेक्शन. सो ऑन ईच व्हील द नेट रिएक्शन फोर्स ऑन इनर व्हील, दिस इज योर, एंड आउटर व्हील के लिए इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. आउटर व्हील पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, इनर व्हील पे वी हैव ए नेगेटिव वैल्यूज. पॉसिबिलिटी है इफ़ दिस वैल्यूज एक्सीड कर जाएगी तो ऑब्वियसली W/2 से छोटी होंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी. सो
For stability, finally we can say for stability, this value, that is the net reaction on the inner force, that should be 0 or it should be always positive. अगर लिमिटिंग वेलोसिटी फाइंड करनी है तो अगेन यू कैन सी, यहाँ से यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. सो इन दैट वे वी फाइंड द रिएक्शन ऑन, और वो एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द फोर व्हीलर व्हेन निगोशिएटिंग अ टर्न. ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू.